Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, we have already completed our 2 chapters, right? We have learned about the force and the mathematical tools, right? And now we are going to start the pressure. ठीक है, हम लोग प्रेशर के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, भले ही वो तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशंस का सिलेबस हो या फिर तुम्हारे ओलंपियाड्स लेवल का सिलेबस हो. वी विल कवर इट बोथ. ठीक है, हम लोग प्रेशर के बारे में जितना नॉलेज ले सके हम उतना लेने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड यू ऑल नो दैट व्हाट वी डू प्रिपेयर फॉर दी ओलंपियाड्स एज वेल एज दी स्कूल एग्जामिनेशंस. तो आई होप आप लोगों ने अपने जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, राइट? एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी. उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना होगा, राइट? एंड व्हाट यू हैव टू डू देयर इज you have to go there, you have to write the code that is TTB08, right? That's for you. ठीक है, तो आप जब जाएंगे कोड लिखेंगे, then you have to join that channel and definitely you can access the DPPs and the study material over there for you all. So it's free for everyone, anybody can do that. So it is so good, right? And you all know this is the awesome team which will help you in getting your goals, all right? Definitely this whole team will be helping you in every goal you have set for yourself. So it's very 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 good, right? Now आपके लिए जो important चीज़ है, जो कि बहुत ज़रूरी है, I must tell you that. And what is that? You have to go on the right, you have to go on this website. When you go on this website, you will be seeing such type of packages over there. आप देखेंगे ये है एक होल पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, लाइक स्टडी मटेरियल, ठीक है, डेली क्विजेस आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ऑलराइट, एंड होमवर्क सबमिशन फीचर आपको मिलेगा, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे. ठीक है, दूसरा पैकेज जो है, दैट पैकेज इज फॉर दी टेस्ट सीरीज, राइट? इफ़ यू नो कि भाई मुझे सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है लेकिन यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, then definitely you can go for the test series. All right, you can go there. You will be having periodic test papers, you will be having recorded live classes and the bi-weekly quizzes. So all 3 features will be given to you if you join the test series. Now what happens when you click on the buy now? When you click on this buy now, you are forwarded on this price details page. Over there you can see whatever cost the package is having. You can definitely write the CY live code here. If you write the code, alright, then 30% discount will be given to you on both of the packages. ठीक है, 30% on this and also the test series. Alright, so definitely you can write this code on any package. Alright, and you can access the 30% discount over there. You have to click on buy package and then you will be forwarded on all the options. You can choose to pay, right? Now the one thing I want to tell you is that if you have any query regarding anything, like which package to choose, or if you have any doubt about anything, like what are the features, what will be the help you will be getting from these packages, any type of things you want, have any type of query, you can definitely go on this number. Alright, you can definitely call us on this number and all your queries will be resolved. Alright, so this is important thing for you all, and definitely it is so much you can say most beneficial for you all. If you have any goal you have set for yourself, then you should go for it. This is highly recommended for anyone. Alright, now let's start the chapter. That's the pressure. We are going to study pressure और हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये प्रेशर होता है, कहाँ कहाँ पे हम अनजाने में ही अब प्रेशर को यूज़ कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. ऑलराइट, और क्या ये लिटरली में एग्जिस्ट भी करता है या फिर हम सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं, या फिर हो सकता है कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, ये प्रेशर होता भी है कि नहीं होता. ठीक है, वैसे हम ये बात तो जानते हैं कि भाई पढ़ाई का प्रेशर तो सब पे है, वो तो सबको समझ में आता है. जैसे ही पढ़ाई का प्रेशर बोलेंगे ना, सबको समझ में आता है, ओ माय गॉड प्रेशर है, तुम पे कितना प्रेशर है, कितना होमवर्क करना पड़ता है. ठीक है, बट द थिंग इज वो प्रेशर और ये प्रेशर, यानी फिजिक्स का प्रेशर और द रियल लाइफ प्रेशर इज टोटली डिफरेंट. जो आपका स्टडी का प्रेशर होता है टोटली डिफरेंट. ऑलराइट, एंड बोथ कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड, राइट? वो प्रेशर भी खत्म किया जा सकता है और इस प्रेशर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टडी हार्ड. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. सो टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर बुक्स एंड जस्ट स्टार्ट
taking the promise to yourself that you will be watching the whole lecture, you will be noting everything down, right, and you will be revising it on the daily basis. Revision is the key, definite सी बात है. आपने अभी तक 2 चैप्टर स्टडी किए हैं, तो आई होप कि आप कंटिन्यूसली उन दोनों का रिविजन करो, बिकॉज एंड टाइम पे जब आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे पढ़ने के लिए ना, उस वक्त आप बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर आपको प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम का, कि भाई सारे चैप्टर्स एक साथ आ रहे हैं, राइट. तो आप अभी से जो है अपने प्रेशर को कंट्रोल करते चलो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा. तो आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है. सिर्फ 15 मिनट्स ऑफ डेली रिवीजन बहुत है, काफ़ी है, ठीक है. तो आप डेली रिवाइज करो, 2-3 क्वेश्चन रोज फिजिक्स के करो, दैट्स इट. बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और आपका सारा प्रेशर छूमंतर हो जाएगा. ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ टास्क देती हूँ करने के लिए तो नहीं कह सकते, बट आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि जो बोला जा रहा है क्या ऐसा होगा कि नहीं. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी. ऑलराइट, मैं आपको भी बोलती हूँ, जो भी आता है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पुश करना है एक नेल को, ठीक है, उसके हेड से. व्हाट हैपन, इस तरीके का कुछ सिनेरियो आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे आपने उसके हेड से इसको अंदर डालने की कोशिश करें. अब आप हथौड़ा भी मारेंगे ना, वहां से इसको स्टक भी करेंगे, वहां से इसको बीट भी करेंगे ना, तो भी ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है. अब देखते हैं आप लोग सक्सीड हुए कि नहीं. आपको क्या लगता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है. अगर बच्चे बोलते हैं कि भाई जाना चाहिए, तो थोड़ा सोचो, वापस से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ. और अगर नहीं जाना चाहिए तो बिल्कुल सही बात है, तुम बिल्कुल सही पे पहुंच चुके हो. बिकॉज नो, हम लोग ऐसे सक्सीड नहीं हो सकते. अब भाई हमको तो क्यों, वाई वी वुड बी डूइंग दिस, बिकॉज हमको जो चाहिए कि भाई ये जो कील है वो इस वुडन प्लैंक में स्टक हो जानी चाहिए, राइट. ये हमारा मोटिव है, राइट. और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो तो स्टक तो होगी नहीं, बल्कि हमको और चोट लग जाएगी. सो ये जो केस है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, अनलेस कोई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो तो, राइट. अब नाउ इसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, बट विद द अपोजिट साइड, ठीक है. हम इसको अपोजिट साइड से इस बार पुश करते हैं लाइक दिस, ठीक है. अब की बार अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से हथौड़ा मारते हैं या फिर कुछ भी चीज़ से हम इसको पुश करने की कोशिश करते हैं, तो अब की बार ये जो है वो अंदर चली जाएगी, राइट. सो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडिंग इन दैट, राइट. अगर हम इस तरीके से इसको जो है पुश करते हैं, हिट करते हैं, राइट, सो इट विल वेंट इनटू दी वुडन प्लैंक. सो व्हाट कैन बी द थिंग, ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग दिस टाइम. ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, हम लोग इजीली इसको कर लेंगे, थोड़े से फोर्स से ही वो घुस जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर हम हेड की बात करते तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता ना. अगर वैसी बात होती, घुस तो वो भी जाता, राइट, वो जो है हेड भी अंदर चला जाता अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते तो. बट हम लोग, हम ह्यूमंस हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, अपने काम को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट. सो दैट्स वाई जो उसका हेड था वो बहुत मेहनत मांगता है, राइट, उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया एंड वी डिड लाइक दिस, ठीक है. जिससे क्या होगा, अगर हम एक बार में स्ट्रोक करेंगे ना, वो हल्का सा अंदर घुस जाएगा इजीली, बहुत ही कम मेहनत में, राइट. सो दिस इज वेरी मच गुड थिंग फॉर अस कि भाई हम लोग इजीली इस काम को कर पाए, राइट. सो यू कैन डेफिनेटली सी दैट नाउ यू हैव डन दैट, राइट. ये बिल्कुल एंटर हो जाएगी, तो सभी को पता है. नाउ द थिंग इज, यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारा नेल है वो पॉइंटेड एंड से अंदर चला गया, वुडन बोर्ड में चला गया, राइट. अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है, आप लोगों ने जनरली ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई किचन में हेल्प कराता है तो डेफिनेटली उसने किया होगा ऑब्जर्व, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ, ठीक है. आपको क्या करना है, पहले ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल्स को काटने का कोशिश करना है, या फिर आप अपनी मॉम को बोलो कि मॉम आप ऐसे कोशिश करो, ठीक है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लंट नाइफ है उससे काटने की कोशिश करो वेजिटेबल्स को, टोमेटो को स्पेशली, राइट. अगर आप ऐसा करते हैं, बिकॉज टोमेटो का जो सरफेस होता है वो बहुत ही पॉलिश्ड होता है, राइट. तो फिर बहुत मुश्किल होगी आपको उसको कट करने में एंड यू विल बी स्टक लाइक दिस. हो सकता है कट ना हो, वो फूट और जाए, राइट. तो टोमेटो फूट सकता है,
हो सकता है वो कट नहीं होगा बिकॉज दैट वाज द ब्लंट साइड, राइट। लेकिन वही काम अगर आप एक शार्प साइड से करते हैं तो वो क्या होगा, आपको बहुत ही फाइन और अच्छे पीसेस मिलेंगे टोमेटोज के। सो इट इज ईजी फॉर टू डू अस, राइट। तो यहाँ पर भी हमने क्या नोटिस किया कि अगर हम उसके ब्लंट पार्ट से अगर हम कट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा, कट तो जाएगा, ठीक है, ऊपर से जो भी हमको मिलेगा वो बहुत मेसी होगा। हो सकता है वो वेजिटेबल फूट जाए, हो सकता है वो वेजिटेबल का जिस शेप में हम उसको काटना चाहते थे उस शेप में ना कटे, कोई डिफरेंट ही शेप में हमको मिल जाए, ठीक है, लाइक कोई रैंडम शेप। और अगर हमें जो है शार्प साइड को यूज़ करते हैं तो वी विल बी गेटिंग द फाइन पीसेस जो कि हमको चाहिए और बहुत ईजिली भी कट हो जाएगा। सो हमारा काम किससे आसान हुआ, पॉइंटेड एंड से, राइट। सो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो आप लोग खुद से बोल देंगे कि भाई इजी हुआ किससे, शार्पर वाले से, ठीक है। सो इट्स मच मोर यू कैन से एक कॉमन सेंस ये कि भाई हाँ इजीली कोई भी बच्चा इसको सही सही बोल देगा कि भाई हम लोग शार्प जो नाइफ है उसी से हम लोग इजीली कट कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, राइट। सो डेफिनेटली दिस इज सो मच गुड। ये आप पता है उससे भी कर सकते हैं जो आपकी सीजर्स होते हैं, पेपर वाले जो सीजर्स होते हैं जिससे आप पेपर कट करते हैं, तो उससे भी आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपकी सीजर हो जाएगी खराब, यानी कि जब वो ब्लंट हो जाएगी, तो इट वुड बी सो मच एफर्ट्स जो है हमारे लगेंगे पेपर को कट करने के लिए, सिंपल पेपर को कट करने के लिए भी। लेकिन अगर हमारा जो सीजर है, ठीक है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है या फिर अच्छा स्टेट में रहता है तो वो बहुत ईजिली और बहुत स्मूथली पेपर कट कर देगा, राइट। तो ये तो चीज़ आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ही चुके हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेज अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। हमारे टास्क को ईजी करने के लिए हमें शार्प एंड चाहिए, राइट। दैट मीन्स हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस भी एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट, वो एरिया अगर बहुत छोटा होता है तो फिर हमारा काम इजी हो जाता है। लेकिन अगर वो एरिया बड़ा हो जाए, जैसे ब्लंट, ठीक है, ब्लंट में आपका जो एरिया है जो कि कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट के, वो बड़ा हो जाता है। तो दैट्स वाई वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं नेल के लिए भी, जब उसके हेड से हम लोगों ने उसको वुडन बोर्ड में पुश करने की कोशिश की तो उसका हेड का था एरिया ज़्यादा, राइट, तो हमको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ी। तो दैट मीन्स अगर ज़्यादा एरिया होता है कॉन्टेक्ट में तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, राइट। और अगर स्मॉलर एरिया होगा, जैसे फोर्स किसी भी अप्लाई, हम जैसे किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अगर स्मॉलर एरिया कांटेक्ट में है तो दैट मीन्स इट इज़ सो मच ईजियर फॉर अस टू डू द टास्क, राइट। जैसे सीजर्स के लिए भी शार्प सीजर्स होंगी ना तो आप बिना एफर्ट्स के या फिर बहुत ही कम एफर्ट्स में आप इजीली उसको कट कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप लोग के पास अगर सीजर ब्लंट होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद भी आपको अच्छी शेप का कटिंग नहीं मिलेगा, राइट। सो इट इज़ सो मच मेसी एंड सो मच यू कैन से मोर एफर्ट्स चाहिए हमें हमारे काम को करने के लिए, राइट। सो यू गॉट द कंक्लूजन, ठीक है। इसी उसमें कि भाई फोर्स और एरिया का हम लोग क्या कंसेप्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी उसमें देखेंगे कि हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं उनका जो ये स्टेप्स होता है, ठीक है, जिनसे हम उनको अपने शोल्डर्स पे हैंग करते हैं, तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये स्टेप्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स यहाँ बड़े होते हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। कुछ बैग में पतले भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमको कौन सा बैग चूज करना चाहिए एंड व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस, कि भाई क्यों मोटे होने चाहिए या फिर क्यों पतले होने चाहिए, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैम। सो द थिंग इज वी वांट टू नो दिस, ठीक है। हमारा जो एंटायर वेट होता है बैग में, हम जितनी भी बुक्स भर देते हैं, ठीक है, स्कूल जाने पे तो बच्चों के बहुत बड़े बड़े बैग हो जाते हैं, राइट। तो द रीज़न कि भाई हम लोग को तो बुक्स लेके जानी है स्कूल में और हम लोग जितनी भी बुक्स नेसेसरी होती हैं सबको बैग में लेके अपना बैग कंधे पे टांग के चलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी की सारी बुक्स का जो वेट है वो अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, राइट। तो दिस इज सो मच रिस्पॉन्सिबल टास्क, राइट। लेकिन आप लोग ये बात जानते हैं कि जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी हम लोग अपने शोल्डर्स पे अपने बैग को हैंग करते हैं तो वहाँ पर भी आप खुद से देखेंगे कि जिस पार्ट से, जिस बैग का जो हमारा स्ट्रिप है वो हमारे जिस पार्ट से टच होता है
उस पार्ट पे हम लोग को थोड़ी ही देर बाद दर्द होने लग जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी है बैग तो, राइट। एंड हो सकता है किसी के अगर पतले स्ट्रिप्स होते हैं यहाँ पे, जो उनके हैंग करने के स्ट्रिप्स होते हैं, अगर वो पतले होते हैं तो भी बहुत ही कम टाइम में आपको दर्द होने लग जाएगा, और कहाँ जहाँ पे भी वो कॉन्टैक्ट में होगा। सो वी कैन से कि भाई पूरा का पूरा एक तो बैग पे वेट लग रहा है तो इट डज अप्लाई फोर्स, राइट। उसी का जो इफेक्ट है वो आपको आपके कंधों पे देखने मिलेगा। हो सकता है आपके कंधे रेडिश हो जाए, वहां पे पेन होना शुरू हो जाए, राइट, और आपके लिए बहुत हैवी हो जाए। सो अगर आपके पास जो ब्रॉड स्ट्रिप्स वाला बैग होगा तो आपको कम जो है वेट फील होगा, ठीक है, आपको कम एफर्ट फील होगा उस चीज़ का, आपको इफेक्ट कम लगेगा फोर्स का। द थिंग बिहाइंड इज कि भाई जो मोटे स्ट्रिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे शोल्डर से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ सो मच ईजियर फॉर अस टू कैरी द वेट ऑफ द बैग, राइट। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर हमारे स्ट्रिप्स छोटे होते हैं तो वो कम कॉन्टैक्ट में होंगे, राइट। उनका जो यू कैन से उनका जो कॉन्टैक्ट है हमारे शोल्डर से, जो कॉन्टैक्ट है वो कम होता है, ठीक है। उस केस पे क्या होगा, जो आपका पूरा का पूरा वेट है वो पूरा का पूरा वेट आपको आपके कंधे पे दिखाई देगा, एंड जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेन होने हो सकता है वहाँ पूरा रेडिश हो जाए, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, जो कि नर्व्स के अंदर से ब्लड फ्लो होता है उसका ब्लॉकेज भी हो सकता है, राइट। सो अगर आपका नैरो स्ट्रिप्स होंगी तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ऑफ फोर्स महसूस होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको ज़्यादा टायर्डनेस फील होगी, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि नेक्स्ट दिन आप लेकर ही ना जा पाओ बैग, राइट। तो द थिंग इज कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ही डेफिनेटली हेल्प करेगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप स्कूल जाएंगे तो आप डेफिनेटली इस बात को चूज़ करके जाएंगे कि आपको जो है बैग लेना है, और वो भी ब्रॉडर स्ट्रिप्स का बैग लेना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारा ये कंक्लूजन क्या है। हमारा ये कंक्लूजन है कि अगर बैग की स्ट्रिप्स पतली होती हैं, ठीक है, उनको हम अपने कंधों पे हैंग करते हैं तो क्या होता है, एरिया इन कांटेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमको ज़्यादा वेट फील होगा हमारी बुक्स का, ठीक है, हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, थोड़ी ही दूर जाने पे हम थक जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न। और अगर हमारा जो बैग है उसका ब्रॉडर स्ट्रिप्स होगा तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम ईजिली बैग को कैरी कर सकते हैं और हमें ज़्यादा फील भी नहीं होगा कि हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा वेट है। सो दिस इज़ वेरी मच बेनिफिट। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं बैग्स की, सो मेक श्योर कि आप वही बैग चूज करें जिनके स्ट्रिप्स मोटे होते हैं, ठीक है, मतलब उनका एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई आई एम सेइंग यू, बट यू शुड डेफिनेटली नोट इट डाउन। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि जो नॉट हॉस्पिटल दैट्स फुटबॉल, जो फुटबॉल के शूज़ होते हैं, फुटबॉल जो प्लेयर्स होते हैं उनके जो शूज़ होते हैं, हैव यू एवर नोटिस दैट जो भी फुटबॉल का फैन होगा वो तो पक्का जानता होगा कि वाई देयर आर स्टड्स ऑन दी फुटबॉल शूज़, बिकॉज आप ये बात जानते हैं। देखिए, फुटबॉल एक बहुत ही अच्छा गेम है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, हमको एक ही बॉल जो है सबको मिली होती है, राइट, उससे हम खेलते हैं, राइट। सो वहाँ पर एक तरीके से आप ये मान सकते हो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है, राइट। उनको किक करना होता है तो लेग का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहता है, तो उनका फिजिकल वर्क जनरली लेग का होता है, राइट। तो अब उसमें क्या दिक्कत है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर भाग रहा है, ठीक है, और ज़रा सा भी वो स्लिप हो जाए, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा घास होती है, राइट, वहाँ पे पूरा ग्रास होती है, तो अगर कोई प्लेयर ज़रा सा भी चलता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस हो सकता है, कभी बहुत कम फ्रिक्शन भी महसूस हो सकता है, राइट। तो इन दैट केस उनको खुद को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट भागते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कौन कहाँ से आ रहा होता है, राइट, इतने सारे प्लेयर्स होते हैं। सो द थिंग इज कि जब कभी वो प्ले कर रहे होते हैं, जब कभी वो खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको क्या चाहिए, उनको ग्राउंड पे ग्रिप बनानी होती है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैम कि वो अपने आप को स्टेबल रख सके और उसको किक कर सके बॉल को, राइट। तो फॉर दैट अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट, उनका जो सोल होता है शूज का, उसमें इस तरीके के स्टड्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्टड्स क्यों होते हैं, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली से दैट ये वाले जो स्टड्स हैं इससे क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा इन कॉन्टैक्ट विद दी
अर्थ, विद द ग्राउंड, वी कैन से दैट, राइट। तो वहां पर क्या होगा, ये वाले जो स्टड्स हैं वो क्या करेंगे, ये ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो इट इज वेरी मच इजी फॉर देम टू प्ले, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब उनका ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो अब जब वो किक करेंगे तो उनके गिरने के चांसेस, उनके फिसलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ दीज टाइप ऑफ शूज हेल्प दोज फुटबॉल प्लेयर्स। एंड यू कैन सी द स्टड्स ऑन द फुटबॉल बूट्स हैव ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, बिकॉज अगर पूरा सोल कॉन्टैक्ट में होता तो इट इज सो मच ईजियर टू गेट स्लिप, राइट। लेकिन अब स्टड्स हैं तो वो ग्रिप बना के रखते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव अ स्मॉलर एरिया, सो वी कैन से कि जो इफेक्ट होगा फोर्स का, दैट वुड बी वेरी मच लार्ज एंड दे वुड होल्ड देमसेल्व्स, स्टेडी देमसेल्व्स, राइट। So you can say the pressure into the studs is high enough for them to sink into the ground, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप को बना पाते हैं, उनका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स दैट प्रेशर, जस्ट नो इट अबाउट द फोर्स ऑन दी एरिया, राइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया है, दैट मीन्स उस फोर्स का जो उनका खुद का वेट है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, एंड दे जस्ट डू इट कि वो उनका जो ग्राउंड में जो उनका ग्रिप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ दे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम स्लिपिंग, राइट। और वो फिर बहुत अच्छा गेम भी खेलते हैं। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड द स्टड्स ऑन इन दी फुटबॉल शूज़, राइट। नाउ सी, ये जो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें की, हमने फोर्स और एरिया के बारे में बातें करी हैं, फोर्स ऑन एरिया, फोर्स ऑन एरिया। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? Force upon area is called the pressure, right? So you can say the perpendicular force acting on a unit area of a surface is called pressure. तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो force है that should be perpendicular, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है that the perpendicular force जिसकी हम बात कर रहे हैं, the force should be perpendicular every single time, alright। तो ये तो important चीज़ है जो आपको remember करनी है। and ये जो force है वो unit area पे जो है लाई करता है, यूनिट एरिया पर एक्ट करता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ इस क्वांटिटी को हम, फोर्स अपॉन एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? प्रेशर बोल देते हैं। नाउ यू शुड नो अबाउट दैट कि भाई देखो, प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। तो दैट मीन्स आप कितना फोर्स लगा रहे हो कितना एरिया पे। नाउ व्हाट इज द एरिया हियर? यू कैन सी ये वाला जो येलो कलर का बॉक्स है, ठीक है, वो ब्लू कलर से कितना कांटेक्ट में है, यू कैन से, ठीक है, जितना भी ये बेचारा कांटेक्ट में है, दैट्स जो मैंने बनाया है रेड कलर से, जितना जितना एरिया इन कांटेक्ट विद द ब्लू बॉडी वही एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया लिखा हुआ है दैट मीन्स दिस इज द एरिया इन कांटेक्ट, राइट। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रेशर होता है उसका मतलब होता है कितना फोर्स लगाया जा रहा है और कितने एरिया पे, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाता है दैट मीन्स यू आर एबल टू कैलकुलेट द प्रेशर, ऑलराइट। नाउ यू नो द प्रेशर एंड let me tell you all the examples और the real life situation जहां पर आप प्रेशर को यूज करते हैं, ऑलराइट। अब आपको रीजन भी पता चल गया होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ पोर्टर जो कि लगेज लेके जाता है, राइट। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कपड़े को राउंड करके, ठीक है, एक मोटे बहुत बड़ा कपड़ा होता है उसको अच्छे से राउंड करके वो अपने पहले सिर पे रख लेता है, एंड देन ही पुट द लगेज ऑन दैट क्लोथ। सो व्हाई डज ही डू दैट? आपको तो पता चल गया होगा ना, क्योंकि मैंने फोर्स अपॉन एरिया तो आपको बता दिया। नाउ सी, देखेंगे ये जितना भी लगेज इस मैन के सिर पर रखा हुआ है वो सारा का सारा लगेज, उसके ऊपर ग्रेविटी तो काम करेगा, बिल्कुल करेगा, हमेशा करेगा, राइट। तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो सिर पे एक तरीके से फोर्स लगाएगा, राइट। उसके अंदर जितना भी मास होगा उससे वो क्या करेगा, वेट बनेगा, एंड इट विल पुट अ फोर्स ऑन टू दैट मैन, राइट। अब आप देखेंगे हमारा जो सिर होता है वो क्या होता है, फ्लैट नहीं होता ऊपर से, इट इज राउंड, राइट, इट इज राउंड। तो जब वो राउंड होता है, लेट मी टेल यू, देखो अगर हम ऐसा साइडवेज देखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सिर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप इतना ऐसे बोल सकते हो, राइट। अब आप देखेंगे इसके ऊपर अगर आप इस तरीके की कोई चीज रखेंगे तो एरिया इन कॉन्टैक्ट बहुत ही कम होगा। अगर एरिया इन कॉन्टैक्ट बहुत ही कम होगा तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर एरिया कम होता है तो दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटर।
तो इसको जो मैन इस सामानों को लेके जा रहा है उसे बहुत प्रॉब्लम होगी लेकर जाने में, और वो हैवी लगेज को कभी नहीं लेके जा पाएगा, ठीक है। अब क्या करे कि एरिया इन कॉन्टेक्ट ज्यादा हो जाए, तो ही इनोवेट समथिंग, राइट, एंड ही डिड कि वो क्या करेगा, कपड़े को रोल बना के उसको सिर पे रख लेगा। अब जब वो रोल उसने बना लिया, ठीक है, दिस इज द हेड, और जब उसने रोल बना लिया, सो इट वुड बी वेरी मच, देखेंगे अभी मैं आपको वापस से ड्रॉ करके बताती हूँ व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस। देखो ये है सिर, राइट, अब उसने क्या किया, अब उसने कपड़े का जो है रोल बना लिया और उसको अपने सिर पे रख लिया, सो इट गोज लाइक दिस, ठीक है। तो अब जो है ये कपड़े का रोल है, ठीक है, अब वो इजीली पूरे सामान को रख सकता है। नाउ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मच ग्रेटर देन बिफोर, सो अब जो उसको फोर्स लगेगा वो उसको ज्यादा फील नहीं होगा, हालांकि फोर्स तो उतना ही है, सेम फोर्स है, बट द एरिया इंक्रीजेस, ठीक है, एरिया इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस, तो अब उसको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और वो इजीली काफी ट्रिप्स कर पाएगा जो कि वो अपना काम का रेगुलर करता है, राइट। सो नाउ यू नो द रीजन बिहाइंड दिस कि भाई क्यों ये जो पोर्टर्स हैं ये कपड़े का एक रोल अपने सिर पे पहले रखते हैं एंड देन दे पुट द लगेज ऑन दैट, right, so this is the reason behind it that they definitely do that। सबसे पहले वो रोल करते हैं and this increases the area of the contact, right। अब देखो खुद से सोचो कि ये जो प्रेशर का हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं उनको तो पता ही नहीं होगा, राइट, उनको तो ये ट्रिक पता है कि भाई अगर हम रोल करके कपड़ा रखते तो हमको प्रॉब्लम कम होगी, हम सामान ज़्यादा अच्छे से लेके जा पाएंगे, उन्हें कम जो है तकलीफ होगी, राइट, उनको ये तो पता है, बट उनको रीज़न नहीं पता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, और वो रीज़न आप लोगों को पता है, राइट। तो अगर ऐसा कभी पॉसिबल हो देन एजुकेट दैम एंड टेल देम द रीज़न बिहाइंड दिस व्हाट दे आर डूइंग इन हेल्पिंग, राइट। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, हम लोगों ने प्रेशर देख लिया, आपको फोर्स का यूनिट पता है न्यूटन, आपको एरिया का यूनिट पता है मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, सो इट इज पास्कल, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, राइट। सो दैट्स वाई हम जब इनका सिंबल लिख रहे होते हैं तो कैपिटल पी एंड स्मॉल ए लिखते हैं, दैट इज पा, ठीक है, पास्कल इज फॉर पा, सो वी कैन से दैट डेफिनेटली। तो अब आप इजीली इसको याद कर पाएंगे, प्रेशर की यूनिट होती है पा, दैट मीन्स पास्कल, ऑलराइट। अब आप देखेंगे ये पास्कल क्या होता है, कुछ भी नहीं करा है हमने, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, वाई, बिकॉज दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एंड acting normally on an area of 1 meter square, why meter square, because this is the unit of the area। so यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं that means न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 पा क्या होता है, that's not पा, that's पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब 1 न्यूटन का फोर्स था डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज जस्ट द 1 पास्कल, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई 1 पास्कल की बात करता है तो आप सीधे सीधे बोल दोगे 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय द 1 मीटर स्क्वायर, और वी कैन से द 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ द 1 पास्कल प्रेशर, राइट। तो अब आप इसे फटाफट से नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स की, राइट, फिर हम उनको स्टडी करते हैं। चलो अभी हम फटाफट से ग्रेविटेशनल यूनिट्स को और देखते हैं। आपको फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट्स तो पता है ना, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स की यूनिट को यूज करेंगे, लेकिन उसमें एरिया और जो है इंक्लूड कर देंगे, सो दैट्स हाउ वी गेट द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ pressure, alright। now let's say if the force is expressed in kg watt, that's the kg weight, and this is the gravitational unit of force, alright, this is the gravitational unit of force, alright, 1 kg weight, alright, that is the gravitational unit of force।
ठीक है, तो अगर फोर्स जो है वो केजी वेट में आए, उसमें हम मेजर करें, तब जो यूनिट होगी प्रेशर की, दैट वुड बी हाउ मच, देखो केजी वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, सिंपल। तो यही क्या बन गई है, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब आप मुझे बात बताइए कि ये जो डेरिवेशन है, ये जो रिलेशन है, इसको हम ऑलरेडी जो है बता चुके हैं, राइट। हमने फोर्स के चैप्टर में जब ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था, सो वी डिड डिराइव दिस कि 1 kg वेट जो होता है ऑलमोस्ट 9.8 न्यूटन होता है, और हम इसे 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं, राइट, अगर हम राउंड ऑफ की बातें कर रहे होते हैं तो। नाउ लेट्स सी कि जो आपका जो प्रेशर होगा 1 kg वेट डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ इजीली लिख सकते हैं, लेट्स डू दैट कि ये जो हमारा प्रेशर का ग्रेविटेशनल यूनिट आया है, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर आया है, नाउ लेट्स कन्वर्ट दैम इनटू द पास्कल। ऐसा यूनिट में हम इसका रिलेशन देखते हैं कि भाई ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, सो आई वुड बी राइटिंग हियर 9.8 न्यूटन divided by 1 meter square. Now you know Newton upon meter square gives you what? Pascal, right? So you can say here 1 kg weight divided by 1 meter square would be giving you 9.8 Pascal. So that means this is the gravitational unit of force. This is the SI, pressure, not the force, I'm so sorry, this is pressure, right? So this is the gravitational unit of pressure and this is the SI unit of pressure, और इन दोनों में जो relation होता है वो होता है that 1 gravitational unit of pressure is equals to 9.8 SI unit of pressure, right? So this is the relation, you should definitely know that. कभी कभी conversion में आपको confuse करने के लिए, आपको questions को tricky बनाने के लिए ये relation कभी कभी जो है use करवा लेते हैं, so you should definitely remember that. अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, alright? उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट्स देखते हैं, कुछ और यूनिट्स जो कि प्रेशर की होती हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ प्रेशर देख लिया है, ठीक है। अब हम कुछ और यूनिट्स को भी देखते हैं, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ATM, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक। अब इसका क्या मतलब होता है, एंड इज इट द यूनिट ऑफ प्रेशर? यस इट इज, ये है एक यूनिट ऑफ प्रेशर। और देखेंगे 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, सो इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, राइट। सो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो 1 एटमॉस्फेयर होता है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप लोग बोल सकते हैं, देखो अर्थ के चारों तरफ है ब्लैंकेट ऑफ द एयर, ये बात तो सबको पता है, राइट। अब आप देखेंगे अर्थ का कोई ना कोई सरफेस एरिया तो है ना भाई, अर्थ का एरिया तो है ना जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, राइट। तो वो जो एरिया है और उसके बाहर वाला जो पूरा एयर उसके चारों तरफ है, वो एयर पूरा का पूरा फोर्स लगाएगी उस एरिया पे, और जब कभी भी फोर्स और एरिया मिल जाएंगे, दे विल डेफिनेटली गिव यू द प्रेशर। ऑलराइट, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे हम इसको आगे की लेक्चर्स में भी कवर अप करेंगे, सो आपको ठीक है उसमें भी पता चल जाएगा। बट द थिंग इज कि जब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, जब पूरी की पूरी अर्थ के एरिया पे फोर्स लगाएगा, यानी कि खुद का वेट वाला फोर्स लगाएगा, तब हम उसको बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको नॉर्मली जनरली, ठीक है, राउंड ऑफ करके इसे 1 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख देते हैं, ठीक है।
और इसे राउंड ऑफ करके सिर्फ 10⁵ पास्कल भी जो है लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको अभी जितना पता होना चाहिए ये तो उतना ही है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको भी नोट करो। दिस इज वेरी मच अ गुड थिंग जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डिपेंडेंसी। देखो, जब कभी भी हम प्रेशर को देखते हैं तो डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ही भाई जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है, कब प्रेशर ज्यादा होता है, कब प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी डेफिनेटली कहाँ से आती है, इसके फॉर्मूले से। तो हमारे पास डिपेंडेंसी को बताने के लिए दो चीजें हैं। Number one is pressure is directly proportional to the force applied. That means जो हमारा pressure है that is directly proportional to force. इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी pressure increase होता है, we can say जब कभी भी pressure in ये P increases है, let me write that again. देखेंगे जब कभी भी pressure जो है इंक्रीज होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कभी भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे और दोनों कम होंगे तो साथ कम होंगे, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो। ऑलराइट, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो दैट मीन्स फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो प्रेशर डिक्रीजेस देन फोर्स डिक्रीजेस। जब प्रेशर डिक्रीज होता है फोर्स डिक्रीज होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है फोर्स इंक्रीज होता है। सो दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखते हैं एरिया पे डिपेंडेंसी कैसी होती है। एरिया पे जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होते हैं, दुश्मन है, ठीक है, इनको एक दूसरे का पसंद ही नहीं रहता साथ। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रेशर होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये तो दुश्मन है बेचारे, राइट। तो क्या होगा, वी कैन से भाई एरिया जो है उसको डिक्रीज होना होगा, ठीक है, डिक्रीज होना पड़ेगा। और वी कैन डेफिनेटली राइट द वाइस वर्सा। लेट मी राइट द वाइस वर्सा। यहां पर हम बोलेंगे कि इफ एरिया जो है वो अगर इंक्रीज होता है, लेट्स से एरिया जो है हमने इंक्रीज कर दिया जैसे पॉटर ने किया था, तो क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज, राइट। प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर खुश हो जाएगा और वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि ये दोनों होते हैं दुश्मन। तो मतलब अगर एरिया को अगर हम कम करेंगे तो प्रेशर विल बिकम ग्रेटर, और अगर प्रेशर को हम कम करेंगे तो एरिया विल बिकम ग्रेटर। आप यहां से समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे एरिया इन कांटेक्ट जो है वो लार्ज है, ठीक है, ज्यादा एरिया इन कांटेक्ट है, तो प्रेशर कैसा है, कम। बिकॉज अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा कम। और इसमें देखेंगे जो हमने एरिया इन कांटेक्ट किया वो स्मॉल कर दिया, कम कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब कभी भी एरिया छोटा हो जाएगा प्रेशर बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, जब प्रेशर छोटा हो जाएगा तो एरिया बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये जो है डिपेंडेंसी है, दोनों की डिपेंडेंसी है, राइट। तो आप इस डिपेंडेंसी को जो है लिख लो फटाफट से, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल काम आने वाला है आपको।
चलो तो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम लोग प्रेशर को यूज़ करते हैं एंटायर लाइफ, मतलब हमारे जो डेली लाइफ है उसमें जो हम प्रेशर को यूज़ करते हैं बाय डिक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग, वट एवर रीजन, बट वी डू यूज प्रेशर, राइट। सो लेट मी टेल यू। नंबर 1, जो व्हीकल के ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, वो व्हीकल के जो ब्रेक्स होते हैं वो होते हैं डिस्क साइज के, राइट। अब वो डिस्क क्यों होते हैं, वाई दे आर द डिस्क, बिकॉज डिस्क का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब कभी भी एरिया ज़्यादा होगा वी लर्न दैट कि प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो टायर्स होते हैं वो फटते नहीं हैं, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली से अगर वो घिस के फट जा रहे हैं तो वो डिफरेंट थिंग है, बट बाय द अप्लाइंग प्रेशर, लेट्स से आपने लेट्स से कि भाई जब हम ब्रेक लगाते हैं, राइट, तो हमने ब्रेक लगाया, वो जो ब्रेक लगे हैं वो क्या करेगा, उन टायर्स को घूमने के लिए रोकेगा, वही काम तो करेगा। टायर्स को घूमने को रोकने के लिए जो ब्रेक्स होते हैं तो वो ब्रेक्स का एरिया ज़्यादा होता है, ताकि जब वो टायर को दबाने की कोशिश करे तो वो फटे नहीं, ठीक है, क्योंकि एरिया इन कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं फटेगा, राइट। और इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी वाई दिस इज द केस, बट इट इज़ वेरी मच यूजेबल थिंग जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। यू कैन सी दीज आर दी आर्मी टैंक्स, ये तो देखे ही होंगे आप सभी ने, राइट। वॉर्स में जो आर्मी टैंक्स होते हैं ये बिल्कुल वही टैंक्स हैं, बट क्या आपने सोचा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर टायर्स, कितने डिफरेंट टायर्स होते हैं, राइट। देखो ये छोटे छोटे टायर्स तो होते ही होते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक बड़ी सी चेन भी होती है, एक यू कैन से एक स्टील का चेन होता है और उसके अंदर वो टायर्स होते हैं। सो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ये जो होते हैं टैंक्स होते हैं, ये आर्मी टैंक्स, ये कई जगह जाते हैं, राइट। ये हर तरीके के लैंड्स पे यूज होने चाहिए, ठीक है। अब द थिंग इज कि मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कांटे हों, राइट, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पत्थर, रॉकी एरियाज हो, राइट, या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ लैंड हो, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा, बेचारे इसके जो टायर्स हैं वो सब तो मतलब वो सब तो रुइन हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। सो टू डू दैट इनका जो एरिया है उनको बढ़ा दिया जाता है। और ऊपर से आप इसको देखो ना, इस मशीन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा मास है, लाइक इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। अब आप खुद से सोचो, छोटे छोटे टायर्स के ऊपर अगर आप इतना बड़ा वेट रख देंगे तो फिर क्या होगा, सोचो आप खुद से। तभी तो जो ट्रक्स के और बसेस के, बिग बसेस के, ट्रक्स के जो टायर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। अब इतनी बड़ी और भारी मशीन अगर छोटे छोटे टायर्स पे चलेगी तो मतलब टायर्स को नुकसान होना पक्का, राइट। यही चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, इसके ऊपर ये बड़ी सी जो इतनी मोटी होती है, मतलब बहुत मोटी होती है, वो जो स्ट्रिप होती है स्टील की बनी होती है, राइट। और ये जो स्ट्रिप्स होती है, एक बेल्ट बोल सकते हैं, देखो वाइट स्टील बेल्ट है ना, उसको जो है इसके चारों तरफ लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, बिकॉज दिस इंक्रीजेज द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एरिया बड़ा हो जाएगा, तो हमने स्टडी किया था प्रेशर विल डिक्रीज, राइट। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो भाई इतना बड़ा आर्मी टैंक का वेट है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हमको ये जो पूरी मशीन है ये हमने बचा ली, किस वजह से, सिर्फ एक बेल्ट लगाकर ही हमने जो है इसको बचा लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ये ट्रैक्टर्स के जो टायर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत तरीके की मिट्टी में काम करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे बहुत सारा कीचड़ होता है, कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो बहुत हार्ड होती हैं, कुछ ऐसी होती है जिसमें सॉफ्ट होती है पर वो अंदर धंस जाते हैं, राइट। तो इस टायर्स को इतना वाइड एरिया इन कांटेक्ट दिया है कि जिसकी वजह से जो ये ट्रैक्टर का टायर है वो जल्दी से ज़मीन में नहीं धंसता, और डेफिनेटली हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ये बहुत हेल्प करता है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सच टाइप ऑफ ब्रॉड टायर्स, ठीक है, जिनकी हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज द एरिया इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस, राइट। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारा काम ईजी होगा, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कैमल्स के फीट। आप लोगों ने कैमल के फीट का भी गौर किया है, अगर नहीं किया तो करना, और यहाँ पे भी कर लो। उनके जो फीट होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं, उनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, उनको क्या बोला जाता है, उनको जो है डेजर्ट का वो बोला जाता है, शिप बोला जाता है, लाइक शिप ऑफ द डेजर्ट समथिंग, कुछ ऐसा बोला जाता है। सो द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो रेत होती है
उस पे अगर हम स्मॉलर कांटेक्ट का एरिया अगर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी से उस रेत में जो है, सैंड में जल्दी से धंस जाता है, राइट। इनके जो फीट होते हैं कैमल्स के वो बहुत बड़े होते हैं और इसी की वजह से वो बहुत ही जल्दी जल्दी रेत में चल भी पाते हैं और उनके पाँव जल्दी से सिंक भी नहीं होते, राइट। सो ये जो ग्रेटर एरिया है इनके पाँव का, यही उनको हेल्प करता है डिजर्ट्स में से जाने के लिए, राइट। सो दैट इज वाई दे आर वेरी गुड इन द डेजर्ट्स, राइट। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे ये बलून, इस बलून पे आप जब अगर कोशिश करोगे इसे फोड़ने का उंगली से, ठीक है, हम अपना फिंगर से अगर इसे फोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो एरिया इन कांटेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये जो एरिया इन कांटेक्ट है ये ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया और उसका इफेक्ट भी कम हो गया और इसकी वजह से आप इसे इजीली नहीं फोड़ पाओगे। लेकिन अगर आप फोड़ना ही चाहते हो तो एरिया इन कांटेक्ट को कम कर दो। कैसे कम करोगे? सुई से फोड़ दो। जब आप सुई से उसको टच करवाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, एरिया इन कांटेक्ट को बहुत 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 कम कर दिया आपने, और जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया और एक बार के पॉइंट आउट से ही पूरा बलून फट जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आपको फोड़ना है तो आपको उंगली से नहीं फोड़ना चाहिए, आपको निडल से फोड़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट। तो अब ये जो है क्वेश्चन, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ये आपको करना है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको सॉल्व करना है, ये भी हम आप जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ऑलराइट। एंड सो ये है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग नेक्स्ट उसमें लेक्चर में स्टडी करेंगे। एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर एंड दैट्स इट। हमारे प्रेशर का वाला जो चैप्टर है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक, लिक्विड एंड द नॉर्मल प्रेशर, यही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली डू द होमवर्क जो मैंने आपको करने बोले। जस्ट ट्राई देम आउट, होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम में फिर से डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।